Well, dear students, the very first thing we're going to start is paper one, and it is reading for ideas, where we will try to find out facts and opinion. In this paragraph, we will only talk about opinions. Let me read this paragraph for you. The internet has revolutionized the speed with which information can be accessed. Students, for example, can use computer instead of books to research a topic in school with almost instantaneous results. The internet is also beneficial because it gives a wide variety of information. People who surf the net never cease to be amazed at the apparently limitless range of facts available. Moreover, in contrast to expensive reference books, the internet provides most of its information at no cost to the recipient. The information is easily stored, as computers take up much less space in a house or a library than rows and rows of bookcases. No one wants their house cluttered with books. ठीक है, अब आप देखें कि इसमें आपको जो ओपिनियन, मजे की बात, आपको सिर्फ you can find only one opinion here, if as far as I have read it. The rest of the things you have find so many informations and facts in it. For example, the internet has revolutionized the speed with which information can be accessed. It's sort of fact. Students, for example, can use computer instead of books to research a topic in school. देखिए उसने लिखा हुआ है कैन यूज कंप्यूटर, से ये नहीं कहा कि स्टूडेंट यूज ओनली यूज, तो यहाँ पे कैन के साथ उसने एक अपॉर्चुनिटी दी है, तो ये उसने फैक्ट नहीं बताया, उसने पॉसिबिलिटी का इजहार किया. The internet is also beneficial because it gives a wide variety of information. People who surf the net never cease to be amazed at, look at this, cease to be amazed at, never covered use कर दी, ये भी उसके लिए एक opinion cause कर रहा है, of facts available. Moreover, in contrast to expensive reference books, the internet provides most of its information at no cost to the recipient. ये fact है, obviously उसको उतना खास पैसा नहीं देना पड़ता. The information is easily stored, बिल्कुल fact है. As computers take up much less space in a house or library than rows and rows of bookcases, बिल्कुल फैक्ट है. No one wants their house collected with books, ये एक ओपिनियन है. उसने कहा कि कोई भी शख्स अपने घर को किताबों से भरना नहीं चाहता, तो कई लोग चाहते भी हैं, तो ये उसके ओपिनियन होगा, लिहाजा यहाँ से बात करते हैं. बिल्कुल ठीक है जी, खजर ने इसको ओपिनियन को फाइंड आउट कर लिया है, तो इसके मैं आपके लिए आंसर शेयर कर रहा हूँ. पीपल हु सर्फ द नेट नेवर सीज टू बी अमेज्ड एट द अपैरेंटली लिमिटलेस रेंज ऑफ फैक्ट्स अवेलेबल. ये एक ओपिनियन है, और इसमें दूसरा ओपिनियन ये है कि नो वन वांट्स देयर हाउस क्लटर्ड विद बुक्स. ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया, इसमें किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं. ठीक है, यू कैन आस्क द क्वेश्चन राइट इन बिटवीन व्हेन आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. ओके जी. हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अब इसकी रीडिंग फॉर मीनिंग के लिए. ये पेपर 2 है. पेपर 2 का रीडिंग फॉर मीनिंग. My family lived in a tiny metal roofed house facing the Pacific Ocean. Behind the house was a detached garage over which I had my bedroom. One of the good things about this was its low, slanted ceilings, which kept the adults away. That night, I stepped unnoticed down the dark outside stairway from my room. It was 2:05 a.m., an hour before low tide. With a full moon, I could hear the sea hissing faintly and was aware of the fishy reek of living, dead and dying seaweed, clams, and crabs. अच्छा जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ है. फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखिए एक टेक्निक ये होती है कि जो क्वेश्चन दिए होते हैं उस पैराग्राफ के अंदर, जैसे पैराग्राफ 1 के अंदर है, आप पहले क्वेश्चन पढ़ ले, फिर इसको रीड करें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यार यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है. ये ऑल इज योर चॉइस, ये आपकी चॉइस है. लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, इफ यू वांट टू स्टैंड at the position where you can get A plus or something else, तो उसके लिए आपको सिर्फ 2 चीजें करनी है. मेरी बात गौर से सुन लीजिएगा. इंग्लिश में लिखी हुई कोई भी चीज जो भी है, वो जिस तरह की मर्जी लिखी हुई है, इफ यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली, रियल सेंस व्हाट इज द मैसेज गिवन इन दैट सेंटेंस, और जो चीज आप सोच सकते हैं, जिस तरह की भी चीज सोच रहे हैं, जिस तरह की मुश्किल चीजें आप सोच रहे हैं, उनको अगर आप अपने लफ्जों में लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका A+ का तो मसला ही कोई नहीं इंग्लिश का, वो आपको आती है.
लेकिन अगर आपको लिखी हुई चीज को समझ नहीं आ रही है क्या लिखा हुआ है, क्या बात हुई, तो फिर तो मतलब एक ग्रेड भी आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है। जैसे माय फैमिली लिव्ड इन अ टाइनी मेटल रूफ्ड हाउस फेसिंग द पैसिफिक ओशन, तो वो अपनी फैमिली की बात करता है, वो कहाँ रहता है, पैसिफिक ओशन में रहता है। और वो जिसको मेटल रूफ्ड है, पैसिफिक ओशन में नहीं रहता, बल्कि वो रहता है मेटल रूफ्ड हाउस में रहता है, छोटा सा घर है, पैसिफिक ओशन के सामने है। मतलब वो जो घर से बाहर निकले तो सामने उसका पैसिफिक ओशन होता है। तो बिहाइंड द हाउस वाज अ डिटैच्ड गैरेज, और उसके घर के पीछे एक गैरेज है, और वो अपने घर से साइड पे हुआ हुआ है। ओवर विच आई हैड, मैं उसके ऊपर उसका बेडरूम है। तो वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट दिस वॉर इट्स लो स्लैंटेड सीलिंग, और एक अच्छी बात यह है कि उसकी जो छत है ना वो नीचे है और स्लैंटेड है, टेढ़ी है, थोड़ी सी इटैलिक्स है। तो विच केप्ट अडल्ट्स अवे, जिसकी वजह से कोई बड़ा कमरे में आसानी से दाखिल होता, सिर्फ वही जा सकता है। ये उस कमरे की खूबी आ गई यहाँ पे। तो दैट नाइट आई स्टेप्ड अननोटिस्ड डाउन द डार्क आउटसाइड स्टेयरवे फ्रॉम माय रूम। तो कहता है कि उस रात को मैं अंधेरे चुपके से निकल गया, कोई मुझे देखना नहीं था। तो 2:15 का रात का वक्त था, और आवर बिफोर लो टाइड, और ये ना एन आवर बिफोर लो टाइड, ये भी लो टाइड आपको पता है कि एब्स एंड फ्लो होता है, समंदर की लहरें आती है, जो एक लो होती है, खाई होती है। तो कहता है जी लो से मैं तो 1 घंटा पहले चला गया, ये तो फुल मून और मून पूरा था। आपको पता है जब चांद आ रहा होता है तो उसके अंदर जो मद्दो जजर है, जो एब एंड फ्लो है, वो ज्यादा हो जाता है। आई कुड हियर द सी हिसिंग फेंटली, तो मुझे पता था कि जो समंदर है उसकी मूवमेंट की आवाज उसकी हल्की सी आ रही थी। एंड वाज अवेयर ऑफ द फिशी रीक ऑफ लिविंग, और वो अवेयर था, मतलब देखे ना उसने स्मेल को अवेयर के साथ कहा, एंड वाज अवेयर ऑफ द फिशी रीक, री कहते स्टेंच को, और लिविंग का मतलब जो है ना जिंदा या मुर्दा की जो स्मेल थी वो उसके नाक में आ रही थी या उसको महसूस हो रही थी। सीवीड की आ रही थी, क्लैम्स सॉर्ट ऑफ फिश टाइप होती है, मतलब जो आपको मिलती है, क्रैब्स आपको पता है क्या क्यों कहते हैं। तो इसके जो डिफिकल्ट मीन्स के अंदर पहला जो डिटैच्ड है, इसका मतलब सेपरेटेड, डिस्कनेक्टेड, अपार्ट या रिमूव्ड के मीनों में आता है। फेंटली का मतलब डिमली, वीकली, स्लाइटली और फीबली के मानों में आता है। और जो रीक है इसका मतलब स्टेंच, और ये स्टिंक, स्मेल, ऑर्डर, वेव स्मेल, इसके मीनिंग में आ रहा होता है। ठीक है, तो ये वोकैबुलरी आप इसको वोकैबुलरी को आपको साइड पे रखें, मतलब इसको यूज करें फेंटली, रीक और डिटैच के बारे में इस्तेमाल। जी क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रॉम पैराग्राफ 1 में, व्हाट टू फीचर्स ऑफ माइल्स बेडरूम मेंट ही कुड लिव अनट्रबल्ड बाय एडल्ट्स, तो वो कौन सी दो चीज है जिसमें कोई एडल्ट एंटर नहीं हो सकता। तो अगर आपने अच्छी तरह से पैसेज पढ़ लिया है तो बड़ी आसानी से उसके आंसर दे सकते हैं। अगर आप मुझे इफ यू तो आंसर करते हैं जल्दी से। जी बिल्कुल, ये आंसर आ गया, सामने आंसर दे दिया, डिटैच, बिल्कुल ठीक है। और दूसरा, दो चीजें आपने बतानी है, और डिटैच था, और दूसरा कौन सा है, जल्दी से बताएं, बड़ा इजीली लिखा हुआ यहाँ पर। वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट दिस वे इट्स लो स्लैंटेड सीलिंग विच केप्ट द डर्ट। ठीक है ना, तो फ्रॉम फ्री फ्री फ्रॉम अडल्ट्स, तो वही तो पूछ रहा है, हमारे को यही पूछ रहा है कि फ्री फ्रॉम अडल्ट्स है तो क्यों है, वो क्यों का आंसर पूछ रहा है। ठीक है ना, तो वो इसका आंसर आप जब तक करेंगे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं है। लो सीलिंग और स्लैंटेड सीलिंग, बिल्कुल ये है इसका आंसर। ठीक है, तो पहला है लो या स्लैंटेड सीलिंग है, उसकी वजह यह है कि वो इतनी नीचे है कि बड़ा आदमी उसको झुक के जाएगा तो वो जाना पसंद ही नहीं करता। और दूसरा ये है कि वो आउटसाइड स्टेयरवे है, या फ्रॉम हिज रूम है, या डिटैच्ड के मानों में भी कह सकते हैं कि आउटसाइड स्टेयरवे है, फ्रॉम हिज रूम है, डार्क है, और वो डिटैच्ड के मानों में यहाँ पर आ सकते। क्लियर होगी बाजी। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ 2, इट वाज माय फर्स्ट समर कलेक्टिंग मैरीन स्पेसिमेंस फॉर मनी। ये देखें वो क्यों, जो क्यों मैरीन की चीजें या जो समंदर के अंदर चीजें हैं उनको क्यों कलेक्ट कर रहा था, फॉर मनी, पैसों के लिए। तो आई सोल्ड, मैं वो बेचता था क्या, स्टार फिश, क्रैब्स एंड अदर टाइटल क्रिएचर्स टू पब्लिक एक्वेरियम्स। Almost everything had a market. I was discovering. I offloaded at a local restaurant the clams I had collected, and for more unusual types of sea life, I dealt with a private aquarium dealer. Full moon was when I often had my best haul. कहता जब full moon होता था ना, उस वक्त कहता I had my best haul. तो which complicated things because I wasn't allowed on the mud flats आफ्टर डस्क। और कहता है कि ये एक कॉम्प्लिकेटेड थिंग उस वक्त हो जाती थी कि मुझे अलाउड नहीं था मड फ्लैट्स में जाने का। आपको मड फ्लैट्स जो है वो इस वीडियो में तो आपको नहीं दिखा पाऊंगा, अगली वीडियो में मैंने मड फ्लैट्स की पिक्चर आपको दिखाऊंगा कि ये मड फ्लैट्स होते हैं क्या। ठीक है, तो कहता है कि इसमें प्रॉब्लम आपको समझ लगी है क्या क्या आना चाहता है। उसने अपनी बहुत सी चीजों को बताया कि वो इन जो सी फूड है या जो मैरीन लाइफ है उसको सेल आउट करता है, कितनी जगहों पे सेल आउट करता है ये बता दिया उसने। और फिर उसके जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी उसने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। ऑफ लोड का मतलब डाइवेस्टेड, अनबर्डन के मीनिंग में आता है। क्लैम ये शेल फिश होती है, इसको डॉलर भी बोलते हैं, और शायद पर्सन करेंगे, ये 3 मीनिंग है क्लैम्स के।
पहला मीनिंग शेलफिश, दूसरा डॉलर, तीसरा ए शाय पर्सन के कहते हैं ही वाज सच अ क्लैम, ही वाज सच अ क्लैम, आई नीड सम क्लैम्स। ठीक है ना, तो देखें तीन मीनिंग्स आपके डिफरेंट आ रहे हैं। हॉल का मतलब जो है वो ड्रॉ, पुल, हीव, खींचना या ड्रॉ करने के मानों में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। ठीक हो गया? चलें, नेक्स्ट हमारे पास है इट वाज माय, ये बात क्वेश्चन आंसर करते हैं फ्रॉम पैराग्राफ 2, फ्रॉम व्हिच थ्री सोर्सेज डिड माइल्स गेट मिल्स गेट मनी इन एक्सचेंज फॉर द सी क्रिएचर्स ही कलेक्टेड। तो देखें कितना सिंपल हो गया, जब आपको पढ़ना आ रहा है तो आपको आंसर भी आ रहे हैं। तो जल्दी से बता दें कौन कौन से तीन आंसर आ रहे हैं यहाँ पे। पहली चीज कौन सी है? बहुत सिंपल, पब्लिक एक्वेरियम्स, बिल्कुल ठीक है। दूसरा लोकल रेस्टोरेंट, और तीसरा क्या है? अब प्राइवेट एक्वेरियम डील। ठीक है जी, क्या कितना सिंपल चीजें हो गई है। नहीं नहीं, वो आपने तो नाम बता दिया ना, वो किसको देता है ये आपने बताना है। फॉर विच थ्री सोर्सेज डिड मिल्स गेट मनी इन एक्सचेंज ऑफ द सी क्रीचर्स, किन को देकर पैसे कमाता है, ये अपने फोकस करना है। क्वेश्चन क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे। ठीक है जी, चलें जी। क्वेश्चन पैराग्राफ नंबर 3 आ रहा है। आई वॉक्ड अलोंग द एज ऑफ द वाटर द लाइट ऑफ माई फ्लैश लाइट बाउंसिंग अहेड ऑफ मी, लुक एट दिस। अब देखें, डिस्क्रिप्शन चेक करें वो क्या कह रहा है। आई वॉक्ड अलोंग द एज ऑफ द वाटर, पानी के साथ से चल रहा है। द लाइट ऑफ माई फ्लैश लाइट बाउंसिंग अहेड मी, और जो मेरे सामने जो टॉर्च की लाइट है वो जंप लगाती हुई आगे जा रही है। पिकिंग माई वे टू अवॉइड क्रशिंग क्लैम्स शेल, और मेरा वो रास्ता बना रही थी कि मैं कहीं क्लैम्स को कुचलता हुआ ना चला जाऊं। आई सॉ अ मैसिव मून स्नेल, और मुझे एक मैसिव मून जो है ना वो मून स्नेल मिला उसको। अब ये मून स्नेल अगर आपने नहीं देखा हुआ तो मैं आपको ये दिखाता हूँ तो ये मून स्नेल क्या होता है। इट्स अंडरसाइज्ड, अब ये अंडरसाइज है, अंडरसाइज शेल राइडिंग हाई ऑन इट्स बॉडी लाइक द कैब ऑफ ए बुलडोजर। अब इसका मतलब है कि उसने बात की है मून स्नेल की, तो मून स्नेल ही को बता रहा है कि वो कैसे है, कि जैसे बुलडोजर नहीं होता उसके ऊपर कैब के, बुलडोजर के ऊपर कैब रखा हो, ऐसे ही वो मून स्नेल है। तो बिलो विच इज अमाउंट ऑफ ऊजिंग फ्लैश, और इसके नीचे जो ना फ्लैश है वो ऊज कर रही है। मतलब आपको पता है ऊजिंग हल्की हल्की जिसके नमी निकल रही होती है, कतरे निकल रहे होते हैं, जेल टाइप कहते हैं। तो कहते हैं फॉर एनी क्लैम अनलकी इनफ टू बी इन इट्स पाथ, तो फ्लैश हंटेड फॉर एनी क्लैम अनलकी इनफ टू बी इन इट्स पाथ, और कोई भी उसके रास्ते में जो क्लैम आ रहा था ना अन बदकिस्मत, उसको वो शिकार कर जा रहा था, वो खाई जा रहा था। अब ये जो मून स्नेल होती है, अगर आपने नहीं देखी भी तो आपको जरूर पता है, ये पिक्चर भी आपको, ये वर्ड भी समझ में नहीं लग रहे होंगे, या वर्ड्स बहुत अच्छी तरह समझ लग रहे होंगे, तो फिर वो आपको कहीं से भी समझ में। आई थॉट अबाउट ग्रैबिंग इट, कहते मेरा दिल क्या मैं उसको ग्रैब कर लूं, बट इट वाज टू बिग, बहुत बड़ा था। सो आई वेंट आउट फॉरवर्ड द ऑस्टर फॉर्म बिलोंगिंग टू जज स्टेंगर, तो कहते जज स्टेंगर के पास चला गया। दैट वाज माय रादर वीक एलिबाई। अगर आपको एलिबाई का मतलब नहीं पता, अली भाई का मतलब नहीं पता, अली भाई का मतलब नहीं पता, तो आप इसको सेंस नहीं कर सकते कि ये जज स्टेगनर का अली भाई के साथ क्या ताल्लुक होगा। ये एलिबाई, इफ आई वाज कॉट आउट देयर दैट वाज टेंडिंग द दैट आई वाज टेंडिंग द जजेस पोस्टर। अब वो कहते हैं जी कि अब आपको पता है एलिबाई का मतलब जो है ना एक्सक्यूज को कहते हैं, एक बहाने को कहते हैं। कहते हैं जी अगर मैं रात को मुझे पकड़ ले कि तुम रात को से क्या कर रहे हो, तो मैं को यार मैं तो जज टेंगर के घर जा रहा था, उसके ऑस्टर्स की मैं निगरानी करना जा रहा था। तो ये वीक क्यों था? क्योंकि रात के वक्त कौन निगहदाश्त करता है वगैरह वगैरह। He paid me $20 a month to help maintain them, though not at night, of course. Still, it could be useful if someone asked what I was doing there at that. I knew how everyone felt about Judge Stegner. My father tucked his shirt in whenever he came around, and when the judge spoke in his deep, easy rumble, nobody interrupted. अच्छा, अब आप देखें उसने इस एक पैराग्राफ के अंदर कितनी चीजों को जो है ना एक्सप्लेन कर दिया उसने। ये जज स्टेगनर साहब को डिफाइन कर दिया, अपना बजी को डिफाइन कर दिया, उसके रोल को डिफाइन कर दिया, एलबी की बात कर दी उसने। तो अगर आपको ये पढ़ना आता है तो आपको मजा आएगा, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो आपके लिए सब ग्रीक हो गई चीजें। ठीक है जी, तो आई होप सो के थिंग्स आर वेरी मच क्लियर नाउ। इसके मीनिंग्स देख लेते हैं। Whose का मतलब इमिशन, डिस्चार्ज, एक्सूडिंग को कहते हैं, और जो एलिबाई एलिबाई है, एलिबाई का मतलब एक्सप्लेनेशन, एक्सक्यूज, डिफेंस या रीजन कहते हैं। और ये टेंडिंग मतलब ट्रीटमेंट, नर्चर, नर्सिंग या अटेंडिंग के मानों में इस्तेमाल होता है। ये क्वेश्चन आंसर को देखते हैं हम लोग। ये है जी आपका, ये आप देख लें, ये है मून, जब बात कर रहे थे मून स्नेल, उसने देखो जो बुलडोजर की बात की है ना उसने, ये देखो बॉडी लाइक द कैब ऑफ ए बुलडोजर, तो ये आपको बुलडोजर नहीं लग रहा? ठीक है ना, और ये ऊपर कैब जिसके अंदर वो बैठ के बुलडोजर पे चला रहा होता है, नीचे पे देखें यूज कर रही है उसको। तो ये है मून स्नेल, और ये मून स्नेल अच्छा खासा बड़ा होता है, और ये इसके टेंटिकल्स भी होते हैं बड़े। और मून स्नेल इट्स, हाँ, और ये इसको मून स्नेल लगा था बाद में
अच्छा जी, मोर लाइक यूएफओ, जी बिल्कुल इसी तरह से है, ठीक है ना। और इट्स अंडरसाइज शेल राइडिंग हाई ऑन इट्स बॉडी लाइक द कैब ऑफ बुलडोजर। समझ लगी अब आपको चीजें किस तरह क्लियर हो रही। बिलो विच इट इज माउंट ऊजिंग फ्लैश, इसके नीचे ये फ्लैश है, ये यूज कर रही है उसको। और फिर एरी क्लेम एनफ टू बी इट्स पाथ, आई थॉट अबाउट ग्रैबिंग इट बट इट वाज टू बिग सो आई वेंट आउट टुवर्ड्स द ओशन। समझ लग रही है बात होगी। अब इसे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन में वो पूछता है कि पैराग्राफ 3 के अंदर क्वेश्चन है, गिव टू वेज इन विच द स्नेल रिजेंबल अ बुलडोजर। किससे बुलडोजर कर रहा है? अगर आपको ये सेंटेंस समझ नहीं लग रहा तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ लगेगा। तो ये स्नेल रिसेंबल क्यों कर रहा है? कैप की वजह से, बिग साइज की वजह से। और व्हाट वाज मिल्स एलिबाई एंड व्हाई वाज इट रादर वीक। तो आपको पता चल गया कि एलिबाई क्या होता है। एलिबाई ये होता है कि वो रीजन बताएगा कि भाई ये तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो कहेगा इस वजह से कर रहा था, ठीक है ना। हाई बर्डन कैप, बिल्कुल ठीक। और जो तीसरा क्वेश्चन है इसके बारे में अगला है, व्हाट डू यू थिंक वाज द एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल टुवर्ड्स जज स्टेगनर। तो जज स्टेगनर के दूसरे साथ क्या रवैया था? तो ये गिव टू रीजन में पहली रीजन ये है, इट्स मैसिव, वेरी लार्ज, ठीक है, पहली बात तो ये थी बुलडोजर के साथ। दूसरा है द शेल इज लाइक अ बुलडोजर कैप, इसकी वजह से इसका आंसर, ठीक है। और व्हाट वाज मिस मिल्स एलिबी, ये थी कि ही वाज स्टैंडिंग लुकिंग आफ्टर मेंटेनिंग द जजेस ऑयस्टर। उसका ये एक्सक्यूज था कि मैं, तुम इस टाइम रात को यहाँ क्या कर रहे हो? वो कहता है मैं तो जज के घर जा रहा हूँ ताकि उसके ऑयस्टर्स को टेंडर करूँ या केयर करूँ। अच्छा, एक और बात याद रखें, पिछले पैराग्राफ में क्वेश्चन आया था उसके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है, तो यहाँ भी सोर्स ऑफ इनकम लिखा हुआ है, लेकिन चूंकि उस पैराग्राफ का क्वेश्चन था तो आपने ये चीज मेंशन नहीं करनी, प्लीज माइंड इट जेम रखना इसको। और व्हाट डू यू थिंक वाज एटीट्यूड ऑफ द अदर पीपल टुवर्ड्स जज स्टेगनर, उसका एटीट्यूड क्या था? तो उसका आंसर ये है कि ही वुडंट नॉर्मली लुक आफ्टर द ऑयस्टर्स, डू दैट एट नाइट, और ही वुड नॉर्मली लुक आफ्टर द ऑयस्टर्स। वो यानी उसका ये रवैया था कि वो रात को नहीं काम करता, इस तरह वो दिन को ही करता है, रात को नहीं करता। अच्छा, इसमें क्यों सर, नहीं? जी सर ये बोलो। ना बी जो सा पार्ट है ना, उसका जो सेकंड पॉइंट है वो सी के नीचे आ गया आंसर। व्हाट डू यू थिंक ही वुड नॉर्मली लुक आफ्टर द ऑयस्टर, बिल्कुल इसी तरह से आ गया। चलो चलें ये देख लें। अच्छा, अब देखिए मैंने यहाँ पे ही लिखा है, ही स्मॉल लेटर में लिखा है, ये अपने कभी भी आंसर को स्मॉल में नहीं करना, प्लीज माइंडेड, इसको ज़हन में रखना है आप लोगों ने, ठीक है। चलें क्वेश्चन पैराग्राफ 4 पे, देयर वर डजन्स ऑफ शोर क्रैब्स नियर द लो मैश फेंस अराउंड द जजेस oyster beds. Crabs amused me in small numbers, but when they crowded together like this, they unhinged me, especially when they were in water where they moved twice as fast as on land. I heard their pincers clasping the fence, pushing their bodies higher. The oysters were under siege, but I could not bring myself to interfere. I rounded the oyster beds to the far side, relieved to find them relatively crab free. अब देखें यहाँ पे जब वो चल रहा है ना, तो वो जो क्रैब्स चल रहे हैं, हम मैं तो कभी भी जारी बात है क्रैब्स के अंदर चलना पसंद ना करूंगा, लेकिन वो देखें वो क्योंकि सारे समुद्र में रहता है तो इन चीजें बड़ी कॉमन सी चीजें होती हैं, फिर चूंकि उसको पैसे मिल रहे हैं तो वो चीजें इसको कर रहा होता है। हम लोगों से कोई बच्चा शायद इसका इजीली काम ना कर सके। तो कहते हैं डजन ऑफ शोर क्रैब्स थे नियर द लो मैश फेंस, वो जो फेंस जो होती है अराउंड जजेस ऑयस्टर बेड्स, ये कि उसकी तो उसने बनाई हुई थी। तो क्रैब्स अमेस्ड मी, मुझे क्रैब्स ने चारों तरफ घेर लिया, स्मॉल नंबर्स। अच्छा क्रैब्स, अच्छा सॉरी क्रैब्स ये अम्यूज है, क्रैब्स अम्यूज मीन स्मॉल नंबर, क्रैब्स थोड़े नंबर थोड़े हो तो मैं खुश करते हैं, बट व्हेन दे आर क्राउडेड टुगेदर लाइक दिस दे अनहिंज मी। तो आप खुद ही इसका अनहिंज का मीनिंग तलाश कर सकते हैं कि अगर क्रैब्स स्मॉल नंबर में अम्यूज करेंगे तो लार्ज नंबर में अनहिंज क्या करेंगे? डिसलाइक करेंगे, ही विल डिसलाइक देम। तो आप आसानी से मीनिंग को कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंड करते हैं, स्पेशली व्हेन दे वर इन वाटर वेयर दे मूव ट्वाइस एज फास्ट देन ऑन लैंड। आई हर्ड देयर पेंसिल, उनके जो पेंसिल होते हैं ना, जो क्रैब्स के जो टेंटिकल्स होते हैं वो जब मूव करते हैं तो उनकी क्लैस्पिंग की आवाज मुझे आ रही थी। तो पुशिंग देयर बॉडीज हायर, द ऑयस्टर्स वर अंडर सीज, लेकिन वो ऑयस्टर जो थे ना वो क्या थे? अंडर सीज थे, उनको किसी जगह पे बंद किया हुआ था। बट आई कुड नॉट ब्रिंग माई सेल्फ टू इंटरफेयर, मैंने उनको इंटरफेयर करना पसंद नहीं किया। आई राउंडेड द ऑयस्टर बेड्स टू फार साइड, साइड रख दिया, रिलीव टू फाइंड देम रिलेटिवली क्रैब फ्री, और अपने आप को क्रैब फ्री महसूस किया। लेडी अनहिंज का मतलब अनबैलेंस्ड, डीरेनेज, डिस्टर्ब या क्रेजी के मानों में आता है। और क्लैस्पिंग का मीनिंग जो है वो, क्लैस्पिंग का मीनिंग ग्रेस्पिंग, क्लचिंग या होल्डिंग के मानों में आता है। और रिलेटिवली का मतलब है कंपैरेटिवली, मॉडरेटली या फेयरली के मानों में इस्तेमाल होता है। ठीक हो गया जी। चलें जी, इसके बाद नंबर 4 पे हम पढ़ते हैं।
Just a second. अच्छा जी. There were dozens of ये हमने कर लिया, question answer हम पढ़ रहे हैं. Explain your own words the two contrasting attitude that the writer had towards crabs, or pick out and write down two consecutive words which suggest that the oyster beds were being attacked by the crabs. Explain your own words the contrasting attitude. Contrasting attitude क्या था? Amused या small number में, और he found them funny, entertaining, comical, made him laugh, smile, और दूसरा क्या था? Crowded, unhinged. ठीक है ना? अब ये when there were a lot of many several. अच्छा, ये आप अपने ना एक पूरे सेंटेंस, ये इस तरह नहीं लिखना आपने एक सेंटेंस लिखना है कि the writer found them funny, entertaining when they are small in number, and when there are a lot of them, it gave him, he disliked them when they are in large number. ऐसे करके आपको लिखना है, ठीक है जी. और अच्छा जी, pick out, write down the consecutive words which suggest that the oyster beds were being attacked by the crabs. ये बताएं जी कि उनको किया जा रहा है. नहीं, आपने अपर केस के अंदर नहीं लिखना, वो तो जस्ट मैंने आपको ये लिखा हुआ है. हाँ नहीं, बिल्कुल जी, इसका आंसर जो है वो अंडर सीज होगा, और ये कैपिटल, ये कंसेक्टिव अंडर और सी दो वर्ड लिखे हुए, इसलिए अंडर सीज होगा. ठीक है जी. चलें नंबर 5 पे देखें जी. नंबर 5 ये, एंड दैट्स वेयर इट हैपेंड, आई हर्ड इट लॉन्ग बिफोर आई सॉ इट, इट वाज द And that's where I happened. I heard it long before I saw it. It was the sound of something exhaling. Was a whale stranded again? I wondered. We had a young mink, whale stunk out there once, and it made similar noises until the tide rose high enough for resources to help me. To help free it, I waited, but there were no more sounds. Still, I went toward what I thought I had heard, avoiding stepping into the mud unless I had to. I knew the flats well enough to know the danger. The general rule was you didn't venture out onto the mud with an incoming tide, or you were in mortal danger. I sank up to my knees twice, but I kept stepping towards the one sound I had heard. A growing part of me hoping I would find nothing at all. अब ये पैराग्राफ नंबर 5 अगर आपको देखें तो मीनिंग समझ लगता है, उसका मतलब आपको अंग्रेजी आती है. अगर इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या देखा है, क्या मूव कर रहा है, तो फिर भाईजान बहुत बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है. एंड दैट्स वेयर आई हैपेंड, कहता है ये वो जगह जहाँ पे कुछ वाकया हुआ. आई हर्ड इट लॉन्ग बिफोर आई सॉ इट, कहता है मैंने उसको देखने से पहले सुन लिया था. इट वॉज साउंड ऑफ समथिंग एक्सेलिंग, कोई ऐसी साउंड थी जो सांस लेती बड़े बड़े, और वो द वेल, तो क्या शायद वेल है जो जब फंस गई यहाँ पे आगे. तो मुझे ख्याल आया, वी हैड अ यंग मिंक वेल स्टक आउट देयर. एक दफा यहाँ पे ना एक यंग वेल आके फंस गई थी, उसका नाम मिंक, ये माइक है या मिंक जो भी है. एंड इट मेड सिमिलर नॉइजेस अंटिल द टाइड रोज हाई इनफ टू रेस्क्यूअर्स टू हेल्प फ्री इट. तो वो रेस्क्यूअर आए और उसको फिर बचा के ले गए थे. आई वेटेड, या उसको वापस समंदर में ले गए थे. आई वेटेड बट देयर वर नो मोर साउंड, इट्स नहीं आई. स्टिल आई वेंट toward that I thought I had heard, avoiding stepping into the mud unless I had to. अब देखो, जब पानी लो टाइड में आता है तो वो मड्स बनी होती हैं, और वो बड़ी डेंजरस मड होती है, क्योंकि उसके अंदर एक दो बंदा फंस जाए तो फिर बाहर नहीं कर सकता. तभी उसने कहा, आई न्यू द फ्लैट्स वेल एनफ टू नो द डेंजर, मुझे पता था किस फ्लैट पे कदम रखना है, किस पे रखना. तो द जनरल रूल वाज you didn't venture out onto the mud with an incoming tide. जब टाइड आ रही हो तो कभी भी वहां पे जुर्रत ना करें जाने की. और यू वर इन इमॉर्टल डेंजर, अगर ऐसा हुआ तो बस हमेशा के लिए मर जाएंगे. आई सैंक अप माय नीज ट्वाइस, दो दफा मेरी जो है ना वो घुटने जो है वो उस मड के अंदर जो है फंसे. बट आई केप्ट स्टेपिंग टुवर्ड द वन साउंड, जो मेरी साउंड आ रही थी ना, मैं उसकी तरफ इधर चला गया. ठीक है जी, समझ लगी आपको. अब हम चलते हैं जिले के मतलब रेस्पायरिंग, ब्रीद आउट कहते हैं विद नॉइज, और स्टैंडर्ड का मतलब रीच्ड ग्राउंड, स्टक के मानों में, और वेंचर का मतलब एंडेवर, स्कीम या प्रोजेक्ट के मानों में आता है. इसके क्वेश्चन आप देखें, व्हाट हैड हैपेंड टू द यंग मिंक, वेल के साथ क्या हुआ था, और एक्सप्लेन योर ओन वर्ड्स व्हाई मिंक
My Mills knew he had to avoid stepping into the mud. So once it goes stuck, stranded, you're trapped when the tide went out on a land in the mud. ये सारे इसका आंसर। तो फ्री it was freed, जो भी बस का एक नंबर है उसको कोई कर सकता है। और मिल्स को कैसे पता था कि स्टेपिंग इनटू द मड कैसे करना है? तो डेंजर था, थ्रेट था, और इसके साथ एक और आंसर मॉर्टल भी आ सकता था। दो आंसर है, तो डेंजर और मॉर्टल कहते हैं, क्योंकि अगर उसने गलत स्टेप रख लिया तो वो हमेशा के लिए अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। ले जी जी बोले नहीं। सर ये दूसरे का आंसर ये नहीं है कि उसको उसके साथ पहले भी एक दफा ये हो नहीं चुका नहीं था? नहीं 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 नहीं, explain your own words. Why Mills knew he had to avoid, उसको क्यों अवॉइड करना है स्टेपिंग टू द मड, के मड पे पाँव नहीं रखना उसने, इसलिए कि मॉर्टल लाइफ थ्रेटनिंग है, जान से हाथ धो बैठेगा वो। ठीक है ना, ये इसका मेन आंसर है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में है, देन माय फ्लैश लाइट क्रॉस्ड इट, कहता है फिर मेरी फ्लैश लाइट ने उसको क्रॉस किया जिसको वो तलाश कर रहा था। माय फर्स्ट थॉट, पहला मेरा ख्याल आया, a massive octopus, कहता है ये कोई ऑक्टोपस है। But when I saw the long tubular shape of its upper body, I knew it was something else. कोई और था। I came closer within 20 meters, close enough to see its body quiver. देखने की उसकी body quiver कर रही थी। I couldn't tell if it was making any sounds at that point because it was impossible to hear anything over the roaring of the blood in my ears. देखो ये क्या लिखा हुआ उसने, it was impossible to hear anything over the roaring of the blood in my ears. ये रोरिंग ऑफ ब्लड इन माई ईयर्स का मतलब क्या है कि उसके कानों के अंदर जो है ना वो खून जो है ना वो चीख रहा था? नहीं, ये उसकी अपने दिल की धड़कन इतनी थी कि कानों में बाहर की आवाज ही नहीं आ रही थी उसको। यू कैन सी द डिफरेंस। It was hard to be sure exactly where it all began or ended. The creature's body was triangular with narrow fins that lay flat on the mud like wings. I was afraid to prise my eyes off its. अब ये वर्ड देखें, prise my eyes off, आपने ये वर्ड, ये idiom है यहाँ पे, prise my off वाला। Its jumble of tentacles for more than half of a second. I did not know whether I was within its reach, and its tentacles were as thick as my ankles and lined with the suckers. ये जो suckers होते हैं ना, जिससे वो suck करती हैं चीजों को, ये जो tentacles होते हैं ना, ये चीजों को पकड़ते हैं और उसको जस्ट कर लेते हैं। If they had even twitched, I would have run. Then I gradually realized the dark, shiny disc in the rubbery mass was an eye, 30 centimeters across. I knew that this creature could only be one thing. It was a giant squid, one of the largest and the rarest of all sea creatures, and it was still alive. ठीक है जी, अब देखें ये एक स्क्विड था। कितने बच्चों ने आप में से जाइंट स्क्विड को देखा हुआ है? अगर आपने स्क्विड को नहीं देखा हुआ और उसको स्क्विड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो समझ जाएंगे कि वो स्क्विड क्या होता है। यू गॉट इट? ठीक है ना। तो अगर आपको स्क्विड को नहीं देखा हुआ आपने, तो ये जरी बात है, ये लैंग्वेज आपको समझ नहीं आएगी तो मसला तो होगा। तो क्विवर के मीनिंग में क्या, क्विवर का मीनिंग होता है थ्रोबिंग, ट्रेमर, शडरिंग, शिवर या पल्पिटेशन को कहते हैं। और जो प्राइज और प्रे है ना, असल में यहाँ पे इसका मीनिंग कीप अवे होगा, लेकिन ये प्राय शिकार को भी कहते हैं। और ये जो PRISE प्राइज और प्राय, इस सेंस में ये होता है कि आप जो है ना यू कीप ऑन लुकिंग समथिंग, इसको कहते हैं। और ये इडियम है, प्राइस माई आइज अवे, के मतलब मैं अपनी आंखों से अलग नहीं कर सका। और ट्विस्ट का मतलब क्या ना, जोल्टेड और जर्क के मानो में इस्तेमाल हो। गुड यार अयान, वेरी गुड। अब आपको हम दिखा देते हैं, आप क्या याद करेंगे। ले आपको ये देखें जी, ये है जी वो स्क्विड, ये सच अ बिग स्क्विड, और ये इसके टेंटिकल्स आप देख रहे हैं इसको, और ये पानी के अंदर देखें ये कितने बड़े टेंटिकल्स हैं, 30 मीटर्स की आंखें हैं। तो ये अपने, ये शिकार करती है इनसे, ये जब पकड़ सर ले ये इसको। ऑक्टोपस ही हुआ? ये ऑक्टोपस नहीं है, ये मतलब उससे पहले कहा कि ये ऑक्टोपस ही है, लेकिन इसको स्क्विड कहते हैं, इसको लार्ज स्क्विड है ये वाला। ठीक है जी। तो देन मैं फ्लैश लाइट क्रॉस डेट में, तो इसके क्वेश्चन आंसर देख ले लीजिए। तो ये क्वेश्चन आंसर पे आ जाए। इट वाज इम्पॉसिबल टू हियर एनीथिंग ओवर द रोरिंग ऑफ द ब्लड इन माय आईज। व्हाट इज द विंड राइटर टेलिंग अस द हियर अबाउट हाउ मिल्स वाज फीलिंग? तो क्या आंसर होगा इसका? हिज हार्ट वाज बीटिंग फास्ट एंड ही वाज एक्साइटेड, अफ्रेड, सेक्रेट, टेरिफाइड, जो भी इसके मीनिंग। और गिव टू रीजंस, कौन सी थी? इट वाज हार्ड टू बी श्योर, यू कुडंट टेल वेयर इट बिगेन एंड एंड, वो कितना बड़ा था वो आपने बताना था। और दूसरा ये था कि ही कुड नॉट टेक हिज आईज ऑफ, स्टॉप लुकिंग एट द टेंटिकल्स, ही वाज टू बिजी लुकिंग एट द टेंटिकल्स टू थिंक ऑफ एनीथिंग एल्स। ये भी इसके मीनिंग है। हाउ बिग इट वाज बिकॉज ऑफ द जंबल और इट वाज डार्क। ये सारे इसकी रीजंस हैं, यू कैन राइट एनी वन ऑफ इट। ये दो रीजन को आप इसको लिखेंगे यहाँ पे। I don't know whether I was within its reach. What does it's refer to here? Answer in one word. तो वो किसको रेफर कर रहा है? It's को, वो स्क्विड से।
क्रिएचर्स या इसको एनिमल्स कह सकते हैं। और what finally convinced males that the creature was a giant squid? तो its huge eyes, the size of its eyes, the eye 30 centimeters across, ठीक है। और इस तरह से what effects does the writer achieve by the final short sentence? तो the danger he was in, the fear और steered या emphasize के मारे में इस्तेमाल। ठीक हो गया जी, ये भी सारे इसके मीनिंग्स है पास। ले जी, हमने बड़ी मतलब क्विकली 30 मिनट्स के अंदर हमने इसको डिस्कस कर लिया। अब ये पेपर के अंदर भी आप ऐसे करेंगे, जैसे पेपर आएगा, अगर आपको पढ़ना आता है पैसेज तो आपको सारे क्वेश्चन आते हैं, पेपर पढ़ना नहीं आता तो बच्चों आपको क्वेश्चन नहीं आते। मेरी बात समझ लग रहे हैं कि नहीं समझ रहे? ठीक है, तो बेटा इसकी प्रैक्टिस, ये चीजें कैसे आएंगी? ऑब्वियसली प्रैक्टिस आएंगी। जितने ज्यादा आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस सॉल्व करेंगे और उसके आंसर खुद बैठ के करेंगे, पहले सॉल्व कर लें फिर आंसर की से चेक करें, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसमें जो डिफिकल्ट वर्ड्स आए हैं, उसने जो एक्सप्रेशन यूज किए हैं, वो आप चीजें इंशाल्लाह आपकी राइटिंग के अंदर नजर आना शुरू हो जाएंगे। ठीक हो गया जी।